वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देने जा रहा हूं जो कि CITS कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो स्टूडेंट CITS की ट्रेनिंग कर चुके हुए हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए DGET ने एक आदेश जारी किया हुआ है। अब मैं आपको ये नोटिस दिखाने जा रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया है, सिंपल सी बात इसमें बताई गई है। जो भी स्टूडेंट CITS कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए यह एक गुड न्यूज़ है, जो कि अब मैं आपको उस लेटर को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। यह लेटर 2 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। कहाँ से? प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली। किन्होंने जारी किया हुआ है? अतुल कुमार तिवारी, IAS, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी। अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये यहाँ पे पढ़ के बताने जा रहा हूँ। डियर सर मैडम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इज द mandated responsibility of the Directorate General of Training DGET under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Craft instructor training is offered by the DGET through 33 National Skill Training Institute NSTI, which are centrally founded institutes, and 18 institutes for training of trainers, ITOT, state government oblique private. Under its craft instructor training scheme CITS, the scheme comprises of a comprehensive training starting skill as well as training methodology to make the instructor trainees converts which the techniques of transforming hand-on skill to the student of Industrial Training Institute ITI with skill set so that the ITI pass out become employable। अब मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया हुआ है। इसमें बताया गया है कि शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय की अनिवार्य जिम्मेदारी है और उद्यम शिल्प प्रशिक्षक डिजिटल द्वारा 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ITI के माध्यम से पेश किया जाता है, जो केंद्र में स्थापित संस्थान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 18 संस्थान हैं। राज्य सरकार निजी अपनी शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत कौशल प्रदान करने के साथ साथ प्रशिक्षक पद्धति के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण को कौशल के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के छात्र को कौशल साझा करने की तकनीक से परिचित कराने के लिए विचार पास आउट रोजगार योग बन जाए। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। DGET हैज mandated CITS and minimum age of 21 years as essential qualification for recruitment of occasional instructor in ITI, so that uniform, standardized and systematic training can be delivered to ITI students. The latest norm for recruitment of instructor in ITIs were issued by DGET on 31 January 2020 to all the director commissioners of state directors dealing with craftsman training scheme
with a request to revise the recruitment rules. Copy enclosed, also uploaded at dget.gov.in_order circular। इसका मतलब है DGET ने ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षक की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य कर दी है, ताकि ITI छात्रों को समान मानक आकार और व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सके। ITI में प्रशिक्षक की भर्ती के लिए नवीनतम मापदंड DGET द्वारा 31 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। सभी निदेशक आयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश शिल्प अनुरक्षण योजना से संबंधित निदेशकों को भर्ती नियम को संशोधित करने के अनुरोध के साथ संलग्न dget.gov.in आदेश परिपत्रों पर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट, It has come our knowledge that some state Uttar Pradesh government in their advertisement for recruitment of vocational instructor for ITI have not included CITS and essential qualification. It is to reiterate that any such recruitment of vocational instructor of ITI without CITS and below 21 years of candidate would not only be violative of DGT norm but also impact the quality of vocational training. Besides inviting intervention by the court, it is to state that DGT MSDE will be constrained to point out these violations before the courts. You are therefore requested to revise the recruitment rule for vocational instructor in ITIs in your state, Uttar Pradesh, by including the CITS qualifications as an essential qualification to bring quantitative improvement in the vocational training across the country. With regard, yours sincerely। इसका मतलब है कि यह हमारी जानकारी में आया है कि कुछ राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विज्ञापन में इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक की भर्ती के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल नहीं किया हुआ है। यह पीछे हटना है कि ITI के व्यावसायिक प्रशिक्षक के ऐसे किसी भी उपचार के बिना 21 साल के उम्मीदवार को इस भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। केवल DGET के मापदंडों के अनुसार, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अदालत द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के लिए ये कहना है कि DGET MSDE अदालत के समक्ष इस हिंसक को इंगित करने के लिए निरंतर रहेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योग्यता और आवश्यक योग्यता को शामिल करके अपने राज्य उत्तर प्रदेश में ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षक के लिए भर्ती नियमों को संशोधन करें। अब DGET ने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो भी ITIs हैं, चाहे वे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट, सभी को CITS इंस्ट्रक्टर रखना कंपलसरी कर दिया गया हुआ है। ऐसा DGET ने इस लेटर में बताया हुआ है, और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके लिए DGET अब सेल्फ कोर्ट में
दावा करेगी। अभी तक ये हो रहा था कि कैंडिडेट कोर्स के लिए जा रहे थे, लेकिन अब डीजीईटी भी सीआईटीएस के लिए सख्ती बरत रही है। कहीं ना कहीं ये जो सूचना है सीआईटीएस कर रहे स्टूडेंट्स के लिए और जो कर चुके हैं उनके लिए बेनिफिट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो।